ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں علی ناصر۔ آج جس موضوع کے اوپر ناظرین ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سی پیک اور وہ پیچیدہ مسئلہ کہ اس کی سرمایہ کاری، یعنی اس کو سرمایہ کدھر سے دیا جائے گا، کہاں سے لایا جائے گا، کیونکہ مین ایم یہی ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ سی پیک جو بنایا جا رہا ہے اس کے لیے مالی ذخائر اور جو بنیاد ہے اس کے فاؤنڈیشن کے لیے فائنینس کہاں سے آئے گی۔ خدشات، شبہات، شکوک جس بارے میں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مکمل منصوبہ جو ہے یہ قرضوں سے پورا کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں اور خدشات میں اضافہ ہو گیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر پہلے تو ایک زمانے میں کسی کو تنقید کرنے کی جرات نہیں تھی، لیکن اب آپ کو پتا ہوگا کہ مہاتیر محمد صاحب کی کلپیں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور ان کو بڑی فریلی جو ہے وہ آپس میں شیئر بھی کیا جا رہا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر اس سے ملتا جلتا جو منصوبہ ہے اس کے لیے قرض سے یا مالی وسائل جو ہیں وہ قرض کے ذریعے لیے جائیں گے اور ان قرضوں کی واپسی جو ہے وہ ملک کی معیشت کے لیے ایک بوجھ بن سکتی ہے۔ اب اس سوال کا جواب لینے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ایک فائنینشل اسٹرکچر بھی تیار کیا جائے اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو ایک مثبت گفتگو کرتے ہیں، ایک تعمیری گفتگو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سولوشن نکلے۔ بہت سارے لوگ کیونکہ کین ہیں، کہیں گے بھائی سی پیک تو بنے گا ہی بنے گا۔ ہاں جی بالکل بنے، اگر ملک کے مفاد میں ہے تو بنے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ سالمیت کے متعلق پہلے بات کی نہیں جاتی تھی، پہلے شور مچایا جاتا تھا کہ صاحب پاکستان کی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سی پیک کا بننا۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل نیریٹو یا بیانیہ ہمارے یہاں بڑی جلدی تبدیل ہوتا ہے، بیانیہ تبدیل ہو گیا۔ اب چین نے بھی بیان دیا ہے حالیہ وقتوں میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کی سالمیت ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ میرے ساتھ آج بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ کامران ناصر صاحب CEO ہیں JS گلوبل کے، ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ جی جناب کامران ناصر صاحب، اب آپ نے بات تو میری سنی، اب اس کا جواب ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ اس سے ملتے جلتے جو منصوبے ہیں وہاں پر ممالک کو بہت زیادہ قرض لینے پڑے تاکہ منصوبہ مکمل ہو سکے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہمیں فنڈنگ مل جائے، بٹ دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ۔ وہ انفراسٹرکچر ہمیں دیں گے جو ہماری ضرورت ہے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے سرمایہ لانا پڑے گا۔ اب یہ بتائیں وہ سرمایہ کہاں سے آئے گا اگر حکومتوں سے نہیں آئے گا قرضوں کی صورت؟ علی بھائی بہت اچھا، اور میرے خیال میں یہ پروگرام آپ کر گئے ہیں، اور اس وقت شاید ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ ہم اس ٹاپک کو لے کے آگے چلیں اور اس کو ڈسکس کریں، اور آگے خاص طور پہ جو عوام ہے اس کے بارے میں اس سے ریلیٹڈ بہت سارے خدشات بھی ہیں جن کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دیکھیں سب سے ضروری یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ تو ایک خیال ہے کہ کہاں سے آئے گا، جس میں ایک جواب یہ بھی ہے کہ کافی آ چکا ہے۔ جو آ چکا، دیکھیں اس کو اگر بریک ڈاؤن کیا جائے تو ایک خیال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ $46 بلین کا پروجیکٹ تھا، وہ بہرحال 46 کا نہیں رہا، اس سے بڑھ گیا، جس میں $34 ارب جو ہے وہ صرف اور صرف انرجی یا پاور ریلیٹڈ پروجیکٹس پہ استعمال ہو رہا ہے، اور باقی جو پیسہ ہے وہ آپ کے انفراسٹرکچر میں ہے، گوادر پورٹ پہ ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، مختلف کام ہو رہا ہے اس میں، میٹرو ٹرینز اور یہ وہ فلانا سارا کچھ بیچ میں آ گیا۔ اب سوال یہ ہے اس کے اندر کہ یہ پیسہ اگر آپ بورو کر رہے ہیں یا قرضے کی صورت میں لے رہے ہیں تو اس کا برڈن بھی اس ملک نے اٹھانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو اگر علیحدہ کر لیں، سیگریگیٹ کر لیں کہ جو کہ $34 ارب پہ جو کام ہو رہا ہے جس میں پاور سیکٹر پروجیکٹس ہو رہے ہیں، یہ بہرحال ایکویٹی انویسٹمنٹ ہے۔ ایکوٹی مانے اس کا کوئی مالک ہوگا، اس کا مالک ہوگا باقاعدہ اس کے لیے انویسٹمنٹ جو ہے وہ قرضے کی صورت میں نہیں ہو، بلکہ مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ مالکانہ حقوق دی جائیں گے، لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوتا ہے 20-80 کی ریشیو میں یا 25-75 کی ریشیو میں۔ سو اگر 20% آپ کی ایکویٹی ہے تو ایکویٹی انہوں نے ڈالی، جو چائنیز آپ کے ہیں جو کہ اس کو اون کریں گے، یا کچھ جگہ پہ کولیبریشن یا پارٹنرشپ بھی بٹوین دا پاکستانیز اینڈ دا چائنیز، ٹھیک ہے جی، آپ نے وہ ایکویٹی اس میں انویسٹ کی۔ ریمیننگ جو 80% لون ہے وہ بھی چائنیز کمپنیز ہی وہ لون دے رہی ہیں، اور جب وہ لون دے رہی ہیں تو وہ لون کے جو پے بیک ہو رہا ہے وہ جب پروجیکٹ چلے گا تو کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ اس کے اندر ضامن بھی ہے، اور کل کو جب یہ بجلی بنے گی اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ہونا شروع ہوگی تو آپ کا جو اینڈ یوزر ہے وہ جو پیسے دے رہا ہوگا اس سے وہ قرضہ بھی اترے گا اور اس سے وہ ایکویٹی ہولڈر کو پیسے بھی جائیں گے۔ یہاں پہ سوال یہ آئے گا کہ کیا یہ جو بجلی بن رہی ہے کہ بہت مہنگی بن رہی ہے کہ بہت سستی ہے؟ اس کے اوپر بالکل دو آرا موجود ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اگر کمپیٹیٹو بڈنگ میں جاتے تو شاید ہمیں پرائسنگ اچھی ملتی۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو تو کوئی پاور دینے کو تیار تھا ہی نہیں، ڈرٹی فیول پروجیکٹ ہے، یہ کسی نے لگانا ہی نہیں تھا، نارملی چائنیز ہی ایسا کے کام کرتے ہیں، اور پاکستان کی اس حالات میں کسی نے اگر ہینڈ ہولڈنگ کی ہے تو وہ دوبارہ سے آپ کا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے جو کہ چائنا بیچ میں، جس نے آپ بزنس دیر آر
no friends, they are only interests. With all due apology, माजरत के साथ एब्सोल्युटली ऐसा होता है, लेकिन देखें इन बिजनेस एक इंटरेस्ट होता है और एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है। देखें चलें, पॉइंट टेकन। एक इंटरेस्ट के लेवल पे अगर आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उस वक्त इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट पे अगर किसी को अट्रैक्ट करना होता तो इन्होंने कोशिश की थी, इतना ज़्यादा इनके पास ट्रैक्शन नहीं आई थी। लेकिन जहाँ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है तो वहाँ पे लोग आते हैं। अब अगर हम दूसरे मौजू की तरफ हैं कि सीपैक है क्या और ये बन क्यों रहा है और उसकी क्या उस पर हमने काफ़ी डिबेट की है। अब जो बाकी क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था इसलिए वो आए भी, मगर यहाँ गवर्नमेंट शायद निगोशिएट अच्छा कर लेती इससे तो बेहतर होता फॉर द एंड यूज़र जिन्होंने बिजली के बिल देने। लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि गिव द क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। जहाँ ये प्रोजेक्ट बना, जहाँ ये सरमायाकारी आई, इसका क्रेडिट जो गवर्नमेंट है जो थी उसको देना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा, जहाँ पे निगोशिएशन इतनी अच्छी नहीं हुई जो होनी चाहिए थी उसके ऊपर बहरहाल इनको कहा भी जा सकता है कि आपको ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए थी या आने वाली हुकूमत को अब ज़रा चीज़ों को देखना पड़ेगा। चलें, लेट मी पुट अ पैरेलल पर्सपेक्टिव हियर। ये चूंकि आपने दो बातें बताई, चलें समझ में आ गई कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि कंपैरेटिव बिडिंग होनी चाहिए थी, एक कहता है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के तहत और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप के तहत, फ्रेंडशिप के बजाय उसे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप भी कह देते हैं, फ्रेंडशिप भी है जारी बात है। तो हम लोग जो हैं वो क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी शेयर करते हैं तो हमने ये काम किया। वाई डोंट वी नाउ कॉल कंपेरेटर्स के भाई अब ये प्रोजेक्ट हमारे किसी हद तक सोलिडिफाई हो गए, अब आप भी आओ, आप भी लगाओ, यूके वाले आओ, आप भी लगाओ, यूएस वाले आओ, आप भी लगाओ, उसमें तो कोई खामी खराबी नहीं है। क्योंकि इफ़ वी आर टेकिंग द फर्नेस ऑयल और द नेचुरल गैस डायरेक्शन तो एक ऑप्शन वो भी, मेरा ऐसा ख्याल है, एक ऑप्शन वो भी एक्सरसाइज अब तो की जा सकती है, कोई खराबी तो नहीं उसमें, कोई खराबी नहीं की जा सकती है। और पाकिस्तान में शायद इससे बड़ा मसला इस वक्त आपको दरपेश है और वो मसला है कि आपको हाइडल बिजली बनानी है क्योंकि आपको डैम्स क्रिएट करने हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी गलती इस मुल्क में हो रही है इस वक्त। सारे पॉलिसी मेकर्स को एज अ नेशनल एजेंडा इस पर बात करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने इस मसले को हल ना किया सो पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर अ बिग प्रॉब्लम। तो मुझे ये बताएं, ये ग्राउंड स्वेल अभी क्यों क्रिएट हुई है? बहुत ज़्यादा यूज वर्ड हो रहा है ग्राउंड स्वेल ना आजकल। फॉर्मर प्रेसिडेंट इज ऑल्सो यूजिंग इट वेरी। हमारे आपको पता है हमारे मुल्क में सारे अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जिस वक्त कोई मौका मिले किसी को तो वो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ करता है। मेरे ख्याल में नेशनल सब्जेक्ट्स को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करना या उसके ऊपर सियासत चमकाना एक अच्छी चीज़ है ही नहीं। हम जिस माशरे में आज हैं, देखिए हमारे पेरेंट्स ने इस मुल्क को बनाने में मैं ये कहता हूँ कि खैर मेरे फोर फादर्स या मेरे दादा और मेरे नाना ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। हमसे ऊपर की जो जनरेशन थी वो थी कि जिसने पाकिस्तान पर तवज्जो नहीं दी। ये मेरी असेसमेंट है, आई कैन बी ऑल रॉन्ग, जिसकी वजह से हम बहुत बड़े मैस के अंदर आज हैं। हमारी जनरेशन वो है जो कि कंफ्यूज हो गई है कि ये बच्चे यहाँ पढ़ाने हैं, अपने बच्चों को बाहर लेके जाना है, करना क्या है। इस वक्त है पैशनेट पाकिस्तानी होने की, पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करने की, पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है वो दिखाने की, और जितने पॉलिसी मेकर्स हैं इनको एक लेवल ग्राउंड प्लेइंग फील्ड पर लाने की और उनको बताने की कि इस वक्त तरजीहात आपकी क्या होनी चाहिए। तरजीहात में तालीम है, तरजीहात के अंदर सेहत है, तरजीहात के अंदर एक सिस्टम है जो कि सस्टेन करे, जो कि हर आए दिन किसी जिसे कहते हैं ना अजीबोगरीब हालात का शिकार ना हो, कि आपको पता चले जैसे कि आपने स्टॉक तो इस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेट ऑफ क्यों क्रिएट हो गई और उसको हटाने या ख़त्म करने के लिए क्या काम किया जा सकता है। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शुरू में जो सी पैक का मुसविदा देखा उसमें बात कुछ इस तरह की थी कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी थे उसमें। अब हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के मुतालिक बहुत ज़्यादा गुफ्तगू शुरू हो गई, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर अमूमन शोशे ही छोड़े जाते हैं और वो शोशे कुछ अरसे बाद फिर लोग भूल भाल जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस दफ़ा पाकिस्तान के मुफाद में है कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को लगाया जाए, बनाया जाए, कहीं ऐसे ना हो इलेक्शन के बाद सारी सियासी जमातें इसको भूल जाएं। कामरान नासिर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा कंसर्न्ड पाकिस्तानीज़, वो लोग जो कि पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, ख़ासतौर पे नई जनरेशन जो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। वेयर डज़ आवर सिंसेरिटी और लॉयल्टी राय? अनफॉर्चुनेटली
लफ्ज़ लॉयल्टी यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मामला इस पर आ गया है। भाषा और दासू डैम भी तो हैं, उनको भी तो शामिल कर लें इसमें। कुछ लोग कहते हैं शामिल हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं शामिल हैं। अगर कर लें तो आसान है, क्योंकि आपको पता है काला बाग के ऊपर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो डू यू थिंक कि सीपैक के अंदर अगर ये 2 डैम आ जाएं तो क्या बुराई है? देखिए भाषा डैम शामिल था और उसके बाद एक तरीके से है भी, लेकिन उसकी फंडिंग जो है वो सीपैक में नहीं की गई। चाइनीज़ को उसके ऊपर कुछ कंसर्न थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई। उन कंडीशंस को एक्नॉलेज करने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, और मैं समझता हूँ कि वो इनकार जो किया गया था वो शायद कदरे सही हद तक किया गया था, क्योंकि उसकी वजूहत इस तरह की थी कि जब उन्होंने इनकार किया था उन्होंने कुछ कंडीशन इस तरह की लगाई थी कि जो कि शायद एज अ सॉवरेन नेशन आपके लिए मानना उस वक्त मुमकिन नहीं था। लेकिन दूसरी बात इन्होंने कहा कि जी क्या भाषा अगर सीपैक के पैसे से नहीं भी बनता तो पाकिस्तान उसको अपने सोर्सेज से फंड कर देगा। ये बात मिनिस्ट्रीज की तरफ से आई और बड़ी कैटेगोरिकली आई। अब अगर ये बात आई तो उस पर काम सारा रुका हुआ है, उस काम को बहुत तेज़ी से होना चाहिए, क्योंकि भाषा डैम को वैसे ही 10 साल लगने हैं बनने में। इट इज़ नॉट कालाबाग। कालाबाग को तो 4-5 साल में आप ऑपरेशनल कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये इस तरीके का है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। सो वन हैज़ टू इसकी फिजिबिलिटी और डिज़ाइन तो इतनी मरतबा बन चुके हैं, बहुत भाषा के भी, दासू के भी, सबकी बहुत दफ़ा बन चुके। देखिए हम लोग एक नीलम जैलम तो मुकम्मल हो नहीं पा रहा है इनसे। आप बोल रहे हैं भाषा बनाएंगे, दासू बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, एक सर जो स्टार्ट है वो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे कि आपको याद है पिछला इलेक्शन जब हुआ था तो सबसे बड़ा जो वोट लेने के लिए या कोई भी आप जलसा देखते थे, रैली देखते थे, सबसे बड़ी बात क्या होती थी? बिजली नहीं है पाकिस्तान में, लोड शेडिंग हो रही है। और मेरा ये यकीन है कि आपके अगले 3 इलेक्शन जो हैं वो शायद अब इसी बात पे होंगे कि पाकिस्तान में पानी नहीं है। पानी रियलाइज करना है, ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, इस पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास हमारी फोकस हमें करना पड़ेगा अपनी प्रायोरिटीज़ की तरफ। आंखें बंद करके सियासी मसलों में उलझ के इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। देखिए अगर आप देखें पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने जो एक ऑपरेशन किया आपके नॉर्दर्न जो एरिया है जो बॉर्डर कर रहा है अफगानिस्तान, उसके आप नताइज देखें पाकिस्तान में टेररिज्म किस तरीके से नहीं चला गया। क्रेडिट किसको जाता है? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, प्लस द पॉलिटिकल पार्टी जो इकट्ठे बैठी और यूनिटी से एक फैसला कर लिया गया कि जी हाँ जी हमने ये काम करना है। तो अगर ये काम किया जा सकता है तो ये काम भी किया जा सकता है, एजुकेशन के भी किया जा सकता है, हेल्थ भी किया जा सकता है। इट इज़ ओनली सिंसेरिटी ऑफ पर्पस एंड नंबर 2 आपका फोकस उस पर कितना स्ट्रॉन्ग होता है। सिंसेरिटी ऑफ पर्पस ही तो बहुत मुश्किल है ढूंढना आजकल के हालात में। खैर एनीवे, एक जो इस मौजू से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किसी दिन और इस पर बढ़ के तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि जनाबे वाला इस पर और मज़ीद क्या काम हो सकता है। तवानाई के शोबे में 34 अरब डॉलर तकरीबन लगभग लगाने थे, ठीक है जनाब। वो सिलसिला आई डोंट नो, आप कह रहे हैं कि वो ऑन ट्रैक है, मेरा दिल पता नहीं क्यों मान नहीं रहा, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, चलें ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए चंद मिलियन डॉलर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए चंद मिलियन डॉलर, गवादर शहर के लिए मैं कहूँगा कि $1 बिलियन से कम, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा होने चाहिए थे। अफसोस की बात, लेकिन समझ में नहीं आया कि टर्मिनेटिंग पॉइंट पे इतने कम पैसे क्यों लग रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल मुस्तकबिल में हो सकता है और मंसूबे भी लगें। इसके अलावा एक मंसूबा मुकम्मल हो गया आपका, जो आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए, वो मंसूबा फाइबर ऑप्टिक वाला था जो मुझे बताया गया। उसके अलावा कोई अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुँचा, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? अच्छा। वो हमें स्पेंड करने, हम एज ए गवर्नमेंट स्पेंड करेंगे टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चाइना, हम पैसे देंगे। देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए 34 अरब डॉलर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि 34 अरब डॉलर सारा का सारा लग गया और सारे मंसूब बन गए। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप इसमें ये कहें कि तकरीबन कोई 61% काम रफली इन आवर एस्टिमेशन वो हो चुका है, 60-70% के करीब हो चुका है, क्योंकि चीज़ें लगना शुरू हो गई हैं। कागज़ में नहीं दिखाई दे रही ना, जो कागज़ में आ रही है हम तो वही बात कर रहे हैं। देखें नहीं, डॉलर हमें डॉलर चाहिए, जो डॉलर्स आपको चाहिए। अभी तो डॉलर्स आपके पास जो आ रहे हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? देखिए ना कि वो अपनी इक्विटी पार्टिसिपेट करेगा और लोन लेगा, सारा कुछ आपके ऑफशोर ही हो रहा है। और जब उसकी बिलिंग हो रही होगी तो उसके पैसे मुझे कंडुइट दिखाई दे रहा है, यानी इन अदर वर्ड्स आई कैन सी अ पाइपलाइन बट आई डोंट सी वाटर कमिंग इन। ये सिर्फ मेरी कंसर्न है। देखिए आई सी द कंडुइट, मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, कि नहर खोद दी आपने, पानी नहीं आया। जो वाटर कमिंग है ना, पाकिस्तान में बिजली बनी भी है, पाकिस्तान के सिस्टम में बिजली की एडिशन हुई है, लेकिन आपको फिर भी लोड शेडिंग नज़र आ रही है। वो इस वजह से नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में जब तक आप अपनी ट्रांसमिशन लाइंस का और लाइन लॉसेस का और जो बिजली की चोरी का मसला सेटल नहीं करते तो आपको वो भी खमियाजा भुगतना पड़ता है। मतलब उतनी और पैदा revived themselves just by upgrading the electricity or power infrastructure.
आज हमारे मुल्क के फाइनेंशियल सेक्टर के पास एक बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है कि वो फाइनेंस करें पूरे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब रिफर्बिश करना, जिसमें ट्रांसमिशन भी है, ग्रिड भी है। तो ये तो आई सी एज एन अपॉर्चुनिटी। लोग कहते हैं चैलेंज है, तकलीफ है, परेशानी, यार ग्रिड है नहीं और पावर लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है, और जिसके पास नोटू है उसके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो टेल मी, उसके लिए जो अरबों डॉलर चाहिए वो किधर से आएंगे? पावर लगाओगे आप, ग्रिड नहीं अपग्रेड करोगे, कैसे होगा? नहीं होगा। और मैंने फिर कहा ना, जैसे कि सिंसेरिटी ऑफ पर्पस मैंने शुरू में बात की थी। हाँ। जब तक चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आज हम कहते हैं कि सर्कुलर डेट है, बहुत से लोग जुमला सर्कुलर करते हैं, लेकिन ये सर्कुलर नहीं, ये काफ़ी हद तक लीनियर है। देखें, ये लीनियर इसलिए भी है कि जब एक चीज़ चोरी हो रही है, एक चीज़ लाइन लॉस में निकल रही है, तो उसमें सर्कुलर फैक्टर तो बाद, सर्कुलर तो ये होगा कि चलो अब पीछे से पेमेंट नहीं हुई, वहाँ फंस गई, वहाँ फंस गई, वहाँ फंस गई, लेकिन जो चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है सारे मसले को, वो काफ़ी हद तक उसमें लीनियरिटी भी शामिल है। तो नंबर वन, मुस्तकिल, आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली मुस्तकिल हो रहा है, गर्दिश में नहीं बल्कि मुस्तकिल है ये। और इस गवर्नमेंट को एक चांस मिला था कि प्राइवेटाइजेशन कर सकती थी ऑफ द डिस्कोर्स, वो मैं उसी पे मैंने लिखा अपने पास वही चीज, जिस प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया गया बिकॉज ऑफ। तो क्या हुआ उसका? इतना बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग द मैनेजमेंट। सिर्फ और सिर्फ देखें, उस वक्त जो रोका गया, जितनी मेरी समझ है, और मैं देखें मैं ए पॉलिटिकल आदमी तो मैं कैंडिडेट बात कहूँगा, मेरा ख्याल है कि आपकी गवर्नमेंट को ज़रा परेशानी शायद ये थी कि इसकी वजह से पॉलिटिकल नॉइज बहुत ज़्यादा होगा। मेरा डिसएग्रीमेंट इस बात नहीं, तो अगर पॉलिटिकल नॉइज किस चीज़ से होगी कि लोग स्ट्राइक करेंगे, वो आपको पता है यूनियन होती है, बंद कर देती है। जब इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था, और प्रोसेस स्टार्ट करने में फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो एडवाइज़र गए थे उनको पकड़ के मारा भी था, ठीक है। तो मतलब कि वायलेंस भी उसके अंदर हुआ था। हमारे एंड पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे कि आपका एडवाइज़र भी भाग जाता है कि जी मैं कैसे जाऊँगा और जाके इनके साथ काम करने की कोशिश करूँ, तो यूनियन जो है वो मुझे उठाएगी और मारेगी। लेकिन उस वक्त दे मेड मेनी डिस्कोस, उसमें तो ये सक्सेसफुल रहे कि खामोशी से इन्होंने जो है, मतलब एक पहले सिस्टम बनाया ना पेप्पो प्लस डिस्कोसी के बाद, वो तो बड़ा सक्सेसफुली इन्होंने कर दिया कि ब्रेक अपार्ट कर दिया, टुकड़े कर दिए। अब उन टुकड़ों को आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करने में मुश्किल हो रही है, यही है ना बात? यही इशू है। और क्योंकि आज तक जो लोग वापडा के सिस्टम से वाकिफ हैं, उनके जहन में वो वापडा ही है, उनके जहन में वही यूनियन है, उनके जहन में वहीं पे एक गोस्ट सैलरीज का स्ट्रक्चर कल्चर चल रहा है, बिजली चोरी का, मीटर रीडर पैसे ले रहा है, 50 चीज़ें जो वहाँ पे हो रही हैं, थेफ्ट भी हो रही होगी, थेफ्ट भी हो रही है, उसको रोकने का जो अमल है वो करना बेइंतहा ज़रूरी है। सो आपका जो 34 अरब डॉलर था, आपके सवाल में वापस आऊँ, उसमें 20% 25% इक्विटी और बाकी लोन। लेकिन अगर आप मुझे डिस्ट्रीब्यूशन में फंसा दोगे, तो अगर फिर मेरी सर्कुलर डेट का खौफ होगा, तो फिर मेरी सीपेक के अंदर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं रहेगी। देखिए आपकी एनर्जी क्योंकि हमने तो आज पैसे किस तरह आएंगे, पैसे तो वापस आएंगे तो फिजिबिलिटी तैयार होगी। देखिए अगर लीनियरिटी वाली आपने बात कर दी और मैं एक एनर्जी कंपनी हूँ या मैं एक एनर्जी इन्वेस्टर हूँ, मेरा तो दिल नहीं मानेगा। मसला है कि वो लाइन लॉसेस भी तो आपका एंड यूजर देता है ना, दे रहा है आपके बिल में, तो वो बात एंड यूजर पे आ गई ना, ये मैं मसला। एंड यूजर को तकलीफ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। बिजली महंगी जब हो रही होती है तो उसके बाद एक लिमिट आ जाती है कि गवर्नमेंट उससे महंगा नहीं कर पाती। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी 12 रुपये यूनिट हो और आप सिर्फ 10 रुपये पास कर सकते हो, तो फिर आपने 2 रुपये का जो एक लॉस है जो सब्सिडाइज कर रहे हैं, वो तो मुसलसल नेशनल एक्सचेकर पे बर्डन जा रहा है ना। हमारे नाज़रीन असल में ज़्यादातर जो देख रहे होंगे जीटी रोड के इर्द गिर्द, उनको शायद इस चीज़ की अभी समझ में नहीं आ रही होगी कि हम तवानाई के शोबे पे क्यों बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सीपेक बुनियादी तौर पे 34 अरब डॉलर जो प्रपोज्ड है, दैट इज़ गोइंग टुवर्ड्स एनर्जी। जीटी रोड के इर्द गिर्द असल में बहुत ब्रेन वॉशिंग हुई है, उनको लगता है शायद ये सड़क जो है ये सीपेक है, लेकिन दरअसल ये एक एनर्जी कॉरिडोर है जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के लिए एक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। लेकिन जहां जो मेरी अब फहम में जो बात आ रही है आपकी बात सुनने के बाद, ऐसे ही। और देखें अगर पावर नहीं होगी तो आप इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे? अच्छा, अब बाकी पे आ जाते हैं। बाकी पे आ जाए। बाकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन्स है, ठीक है जी, जो कि बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ चाइना, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उन लोन्स के ऊपर कहीं कहा जाता है कि 2% इंटरेस्ट रेट है, कहीं कहते हैं 3 है, कहीं कहते हैं 4 है, लेकिन रिड्यूस लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट है। वो इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? वो इस्तेमाल हो रहा है मोटरवेज बनने में, वो इस्तेमाल हो रहा है गवादर को बिल्ड करने में। नो, बट माय की क्वेश्चन इज if I'm building a road to give you access to a trade route, that is the Chinese, to give you access, why are we paying for it through a loan? हाँ जी, हमें ये देखे मेरे जहन में जब बात नहीं आ रही, आप फाइनेंस करो, आप कमर्शियल करो, वेस्ट की तरह आप BOT बेसिस बना लो, यही है इस तरह, या आप PP वो क्या कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर कुछ कर लो, ओके, पॉइंट टेकन। बट इफ आई हैव टू टेक अ लोन टू बिल्ड अ रोड फॉर यू टू कम एंड विजिट माई हाउस,
समझ नहीं आई। देखिए इसके भी दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन, आपको पता है, एक्स गवर्नर रहे स्टेट बैंक के, बड़े सीनियर, मौका मिलते मिलते रह गया उनको, बड़े मिलते मिलते रह बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। और उनकी अगर आप तसानीफ पढ़ेंगे, जितना उन्होंने सीपैक के बारे में लिखा, तो उनका ये ख्याल है कि जी अगर सीपैक के अंदर आप कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पे ठीक करें, उनके ख्याल में काफ़ी ठीक हुई हैं, सो आपका इकोनॉमिक पहिया खुद ब खुद चलना शुरू होगा और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पहले तो उन्होंने कहा ना कुछ ठीक हो गई, हाँ अब देखिए मामले उनके ठीक नहीं रहे। एक छोटी सी ब्रेक लूं, जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसी मौजू का मुकम्मल करेंगे, खास तौर पे कि हाउ डू वी फंड एंड फाइनेंस द रेस्ट ऑफ सीपैक, जो जी के अलावा है, वो भी एक कंपोनेंट है अपनी जगह। कुछ लोग कहते हैं कि उसके मल्टीपल इफेक्ट्स आएंगे, खास तौर पे एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर है, उससे बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड फ़ायदा हो सकता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, सीपैक के मुतालिक बात कर रहे हैं। सीपैक के अक्सरियती मंसूबे, या अगर आप ये कह दें कि हैवी जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो एनर्जी में आएगी। वो फिर मैं बात कर रहा था, लोग उसे भूल भाल गए कि माजी के अंदर इस तरह की बातें हुई, लोग सड़कों तक, और फिर जैसे जीटी रोड के इर्द गिर्द इलेक्शन जीतना था तो वहाँ के लोगों को ही बताया जा रहा था कि सीपैक बहुत अच्छा होगा, उस सड़क को सीपैक समझ रहे थे। लेकिन बात यह है, सड़क भी उसका बड़ा अहम हिस्सा है, रेल लिंक और रेलवे की अपग्रेडेशन भी उसका बड़ा अहम हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड नेटवर्क की इंप्रूवमेंट जो है वो की हैं किसी भी मुल्क की सक्सेस के लिए, कामरान नासिर साहब। लेकिन ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर पे अभी जो ये वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, इसका ज़्यादातर पर्पस ये है कि एक्सेस देना टू न्यू ट्रेड रूट्स। SCO भी हो रहा है, उसमें भी चाइना को सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की शमूलियत SCO में समझ नहीं आ रही। मुस्तकबिल में हो सकता है इन दोनों के दरमियान तिजारती रवाबित उन्होंने कायम करवाने हो ताकि वो सीपैक से ज़्यादा निकाली के अपने इंटरेस्ट होते हैं, और उनका इसमें इंटरेस्ट रखना कि उनको ज़्यादा बड़ी ट्रेड मार्केट मिले, इसमें कोई बुराई नहीं, हमारी सालमियत को कोई खौफ ना हो। लेकिन नॉनदलेस इसको अब फाइनेंस कैसे करेंगे? यानी मैं उनसे लोन लूँ, उनके लिए सड़क बनाऊँ ताकि उनके लिए नए दरवाजे खुलें, मेरे लिए भी तो कोई दरवाजे खुले, मेरे भी तो बैंक फले फूले। देखिए बिल्कुल दुरुस्त बात है। और पहली बात रही कि इसको फंड कैसे करेंगे, फंड कैसे करें, वही मैं बोल रहा हूँ। हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हमारे तो देखें, जो ये प्रोजेक्ट्स बनने जो कि सीपैक का हिस्सा हैं, ये तो बेसिकली लोन चाइनीज गवर्नमेंट देगी पाकिस्तान को और पाकिस्तान उस पर बनाएगा। फंड तो हो गए यहाँ से, अब तो बात यह है कि इसको पे बैक कैसे करना है, ये वापस कैसे करें। पाकिस्तान को जो बड़ा मसला इस वक्त चलेगा जो सीपैक के अंदर आता है, देखें वो ये आता है कि आपने 50, 55 बिलियन, 60 बिलियन डॉलर जो भी अमाउंट है वो आपने ले ली। लेने के बाद आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, वहाँ पे जो बेनिफिट है, फिलहाल हमें पता है चाइनीज़ को तो बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स दिए हुए, लेकिन पाकिस्तानियों को क्या देंगे क्या नहीं देंगे इसके बारे में सब कुछ ओपेक है, क्लियर नहीं है। और बड़ी दफ़ा हमने प्लानिंग मिनिस्ट्री से भी कहा कि हम इस पर डिटेल्स अगर आप ज़्यादा दे दें तो हम उसको ज़रा ज़्यादा बता सकेंगे लोगों को। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये कोई अच्छी चीज़ लोकल इन्वेस्टर के लिए भी बीच में लाएंगे। बट देखिए वापस करने का तरीका सिर्फ एक ही है, अंडर जो अरेंजमेंट हुआ हुआ है, जितना हमें पता है वो ये है कि आपको जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, आप बिजली लाएंगे, उससे क्या होगा, रोज़गार बढ़ेगा, आपकी इंडस्ट्रीज मज़ीद लगेंगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो वहाँ से आप इसको पे बैक करेंगे। That means there is a structured program that we have to follow. And that is success, prosperity. Which is prosperity. लेकिन इसके अंदर आपके पॉलिसी मेकर्स को मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। देखिए आपने एक राहदारी बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उनको अगर गवादर चाहिए था तो आपने साथ ही 50 अरब के प्रोजेक्ट और बता दिए कि ठीक है गवादर तक पहुंचना है, मुझे बिजली भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे फलाना भी चाहिए। अब पाकिस्तान के उनके तो 6 कॉरिडोर हैं और वो 60 प्लस कंट्रीज में ये काम करने जा रहे हैं। जो आपने SCO की बात की, कल को अगर इंडिया से, हिंदुस्तान से कोई चीज़ सप्लाई होकर सेंट्रल एशियन स्टेट्स में अगर जानी है तो वो पाकिस्तान से हुए बगैर तो नहीं जा सकती। तो जो आप इशारा दे रहे थे कि SCO है, यकीनन कुछ ना कुछ सोचा होगा, सफाइयां दे रहे हैं ना, वो सफाइयां दे रहे हैं, कुछ ना कुछ सोचा होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक टाइज को आपको हमेशा, जो वॉर है दुनिया में, आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप इकोनॉमिकली कितने साउंड हैं। खैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक,
ये जो पैसा है, यही टॉपिक है। आप वहां ले गए, फिर कह रहे हैं कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। हम मौजू के ऊपर आप ले गए, आपने ये बात कह दी कि अभी मौजूदा जो इधर की क्या कहेंगे उससे जियो स्ट्रेटेजिक डायनेमिक ऑफ आवर रीजन है वो चेंज करेगा चाइना। वो चेंज करेगा जी, मजबूर है, चाइना चेंज करेगा। और दुनिया भी, ये हमारी कॉल है, ये हमारी कॉल है। हमें अपनी पॉलिसीज खुद बनानी है। देखें, आपको अपने मुस्तकबिल का तयन खुद से करना है। आज सीपैक बन रहा है, सीपैक के उस रूट में जो आपने सक्सेस देखी है, जो कि पाकिस्तान के एक ट्रबल्ड एरिया से गुजरा है, क्योंकि बलूचिस्तान में बहरहाल प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन उसको किसने गार्ड किया, किसने सिक्योर किया? आपकी आर्म फोर्सेस ने। अगर ये इसके पीछे इसको सपोर्ट ना करती तो ये कभी बनता ना। पाकिस्तान को भी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल होता है जब आप गवादर में जाते हैं। बिल्कुल, ये वाली बात मैंने आपकी मान ली, लेकिन आज की तारीख के अंदर ये आपकी बात को इंडोर्स करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर बात है हर इदारा मुल्क का जो होता है वो राय आमा लेकर और बैनुल अक़वामी हालात, ताल्लुकात, मामलात को देखकर चल रहा होता है। ऐसे ही होता है। मैंने बड़ी गहरी बात की है, अब आप समझ जाएं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मैं बयानात को काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, 29 नवंबर 2016 से पहले के बयानात और बाद के बयानात में थोड़ा मतलब ये कि देखकर बंदे को चलना पड़ रहा है। देखिए, मौसम को देखकर होता है, उसके साथ होता है, लेकिन असल बात यह है कि आपको अपने मुल्क का इंटरेस्ट सबसे पहले रखना। देखिए, जीत उस चीज़ में है कि वेयर पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट। पर ये वाली बात आपने कर दी और फिर आपने कहा अब मेन पे आ जाओ। बात तो आपने कर दी कि हमारी इकोनॉमिक, इसका मतलब हमारी न्यू इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स डिफाइन करनी पड़ेंगी, डिवाइस करनी पड़ेंगी। देखिए, आपको इकोनॉमिक रिलेशनशिप तो पूरे रीजन में डिफाइन करनी पड़ेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये नई बात है ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गलत बात, ये नई बात है, ये नई बात है। आपको मैं आपको उसके तफसील भी देता हूँ। नई बात आपको इंडिया के साथ करनी पड़ेगी, आपको ईरान के साथ करनी पड़ेगी, आपको अफगानिस्तान के साथ लेकिन ये डील का हिस्सा नहीं था। नहीं, इसका हिस्सा नहीं था। इस डील में सिर्फ मैं था और तुम थी। ये सिर्फ बात ये है, ये डील सीपैक का आज भी मैं था और तुम थी। आज भी अचानक बीच में कौन कौन आ गया? नहीं, थोड़ा ये है बात। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सीपैक में 6 कॉरिडोर्स हैं। देखें, सबसे पहले ये टेकन सारी चीजें, लेकिन मैंने बताया आपको कि जो नैरेटिव 6 कॉरिडोर्स के अंदर ये जो हमारे सारे पड़ोसी ममालिक हैं, बांग्लादेश, इंडिया, रशिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे आते हैं। ये बात कोई भी मुझे तो हजम हो जाएगी। तो ये इंटरकनेक्टेड ये रूट है, और इसके ऊपर पाकिस्तान तो सिर्फ $60 अरब की बात कर रहा है ना। आपको पता है ये प्रोजेक्ट तो इज रनिंग इनटू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ह्यूज प्रोजेक्ट एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एज वेल, ऑक्सिलरी प्रोजेक्ट्स जो हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पर 2 मिसालें हमारे सामने मौजूद। श्रीलंका की मिसाल है, वहां पर चूंकि अब इस मामले में शकू को शुबा, जब वहां डिफॉल्ट हुआ तो उन्होंने उनसे पोर्ट टेक ओवर कर लिया। जी, ये बात जब पाकिस्तानी स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स को पता लगी, जो कि अपने कमरों की कुंडियां बंद करके सिर्फ पूरा दिन सीपैक का राग आलाप रहे थे, तो उनकी एकदम नींद खुली और उनको पता लगा कि ऐसा भी हो सकता है। और जब महातिर मोहम्मद साहब के बयान चलना शुरू हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आओ, ज़रूर आओ, पैसे लगाओ, काम हमसे लो, काम हमसे लो, कंपनियां हमारी इस्तेमाल करो। जो मतलब ये कि वो ये उनका कहने का जो महातिर मोहम्मद साहब के बयानात माजी में भी सुने हैं, वो ये है कि आप अपने लोग मत लाओ और अपना सारा कुछ ना लाओ, मेरा भी तो कुछ इस्तेमाल करो, मेरे वसाइल इस्तेमाल करो। और एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी, जहां हम सीपैक पे तनकीद भी कहीं करते हैं, तो हम वहाँ पे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। नंबर 1 ये कहते हैं कि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को आपको प्रोटेक्ट करना है। ये ना हो कि कोई आए और आपकी लोकल इंडस्ट्री बैठ जाए। सो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नंबर 2, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहाँ के लोगों के लिए करनी है, ना कि वर्कफोर्स वो अपनी लेकर। ठीक है जी, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, सेफगार्डिंग आवर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देन मैंने कहा ना, पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट, एंड ऑफ कोर्स आवर नेशनल इंटरेस्ट। एब्सोल्युटली। तीसरा है कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे ताकि इन लोगों को आप वो टूल्स प्रोवाइड करें। नहीं, लेकिन यहाँ पर एक एस्पेक्ट उन्होंने भी बताया ना, जो वहां वाली बात है वो यहाँ उन्होंने कहा, साहब हम मुलाजिम नहीं लगेंगे, हम लगेंगे MD CEO, हम होंगे CEO, CMO, CIO, CTO, चाइना से नहीं आएंगे। ये बात उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारी लोअर लेबर लोगे, लेकिन आप ये नहीं मेरी सिर्फ लेबर क्लास को एम्प्लॉयमेंट दोगे, आप मेरी एजुकेटेड क्लास को भी जॉब दोगे, मेरे MBA को जॉब दोगे, मेरे इंजीनियर को जॉब दोगे। थोड़ा मुश्किल काम होगा कि चाइनीज़ को अब हम राज़ी कर लें कि कंपनी आपकी होगी, पैसा आपका होगा, MD मेरा होगा, CEO मेरा होगा। देखिए, आप MD और CEO तो तब लगा सकते हैं ना जब अगर आप जॉइंट पार्टनर्स हो किसी बिजनेस में। अगर मैं इन थ्योरी बात करूं,
نہیں ان تھیوری آپ بات کر رہے ہیں, ہم ان پریکٹس بول رہے ہیں, ہمیں CEO میں تو آپ چاہیے کو یہ کہہ رہا ہوں آپ نے CEO کو تو آپ لا سکتے ہیں جب پیسے سارے آپ کے لگے ہوں, ٹھیک ہے جی. جب آپ نے ایسی اسٹریٹجک کولیبریشن کی ہوتی تو وہاں پہ آپ کو پہلے پری ایگری کرنا پڑتا ہے کہ یہ کولیبریشن ہے. آج کامران صاحب آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں, مجھے آپ سے 70% 80% میرا امپلائی جو ہے میرے ملک کا بندہ استعمال ہوگا, آپ کو الاؤڈ ہوگا کہ آپ 10 سے لے کے 20% تلیں. اس کی الٹی کمپوزیشن نہیں ہونی چاہیے جو کہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کے علاوہ میں ایک امپورٹنٹ بات اگر نہیں, لیکن یہ بات کر دینا کہ سینئر مینجمنٹ میں بھی ہمارے لوگ ہونے چاہیے, اس میں کوئی برائی تو نہیں. کوئی برائی نہیں ہے. Then the strategic direction partially remains with us. دیکھیں کوئی برائی نہیں ہے اگر Or it doesn't. نہیں Because the loyalty of any CEO, MD will remain to the company. جس جگہ پہ آپ کسی پروجیکٹ کو گزار رہے ہیں جو کہ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, جہاں پہ ان کے ساتھ شراکت ہے آپ کی, وہاں پہ آپ ایسی کنڈیشنز دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ انہیں 4 باتیں کہیں گے, وہ آپ کی 1 مانے گا یا 2 مانے گا یا 3 مانے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو 4 باتیں منوا کے چلا جائے اور آپ اسے 1 بھی نہ منوا سکیں. Equitable relationships. وہ ہونا چاہیے. And it should be skewed more towards Pakistan. The reason is it's your ground, it's your territory. So the benefit should pass on to you more as compared to them. اس کے ساتھ میں اگر آخری بات اس میں یہ بھی ایڈ کروں, دیکھیں ہم نے قرضہ لیا, قرضہ واپس ہم نے کرنا ہے. ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے, انڈسٹری کو چلائیں, ایکسپورٹس بڑھائیں, ویلیو ایڈڈ سیکٹر میں جائیں, ایونیوز انکریز کریں تاکہ وہ پیسہ واپس کریں. ساتھ کوئی دوسرا تیسرا طریقہ بھی ہمیں نیگوشیٹ کرتے ہوئے اگر ہم اس وقت سوچتے ہیں, آپ دے رہے ہیں نا, دیٹ مینس کہ ہمیں پھر نیگوشیٹرز آن دا ٹیبل چاہیے. اور نیگوشیٹرز آن دا ٹیبل کہاں سے لائیں گے؟ اسی لارجلی جس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں اس کے لیے تو پڑھے لکھے لوگ چاہیے آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. کیونکہ اگر ہم لوگ پولیٹیشینز یا پالیسی میکرز پر صرف ریلائی کریں کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر ہوں گے, آئی تھنک ہمیں پراپر ٹریڈ انڈسٹری نیگوشیٹرز چاہیے ہوں گے, جو جیسے امریکہ نے بھی ابھی آپ پتہ ہوگا حالیہ وقتوں میں کام تو بگاڑ دیا ہے, لیکن پھر بھی بیٹھے تو پروفیشنل ٹریڈ نیگوشیٹرز کے ساتھ تھے, بھلے اپنا مفاد دے کر ریٹورک پہ نہ جائیں. ریٹورک پہ نہ جائیں. آپ کو نیگوشیٹرز چاہیے, آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو کہ بیٹھ کے یہ بات کو سمجھے بھی اور کرے بھی. امریکہ میں تو نیگوسیشن بیٹھ کے بڑی بڑی کارپوریشنز کے لوگ کرتے ہیں, وہ بیٹھ کے ڈکٹاٹ دیتے ہیں کہ یہ منوا کے لانا بھائی آپ نے. تو ہمارے ہاں کون کرے گا, ہمارے ہاں کون سن رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا. پھر وہاں کی بگ کارپوریشن تو بتاتی ہیں بھائی یہ منوا کے لانا, پھر بات کریں گے تم سے. دیکھیں ایک سب سے اچھی بات ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ کو پاکستان سے محبت کرنے والے اور پاکستان میں قابل لوگ, ذی شعور, جن کو کام کا پتہ ہے, جن کو چیزوں کا پتہ ہے, جو کہ آپ کے انٹرسٹ میں کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو پاکستان میں بے پناہ ملتے ہیں. اگین میں آپ سے جو بات کہوں گا, ہمیں اپنے قبلے کو درست کرنا ہے, اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہے. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک الیکشن اگر بجلی کے اس کے اوپر ہو گیا اور دوسرا جی بجلی پوری نہیں ہوئی اس پہ ہو جائے گا, تیسرا چوتھا پانچواں آنے والا پانی کے اوپر ہو جائے گا آپ کا الیکشن, بیکاز واٹر ول بیکم این ایشو. اس کے بعد تو گرے ہو جائے گا نا بہت. اینڈ دین ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ, دس ول بیکم اندر سورنگ پوائنٹ. مجھے پتہ ہے پاکستان میں جس ملک میں کروڑوں کے حساب سے بچے اسکول کے سسٹم سے ہی باہر ہیں, تو آپ اکنامک انجن کو کوئی بھی ترقی دینا چاہتے ہیں, اس سوال کو میں آپ کے ساتھ ریز کروں گا اگلے آنے والے دنوں کے اندر. آپ نے بڑی اہم سوشو اکنامک انڈیکیٹر کی طرف اشارہ کیا ہے, ان کی جانب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ملک کے اندر تعلیم تک رسائی کتنی اہم ہے, اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہوگی. ناظرین, آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر کو ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.